Welcome to Radio Tunar 90.4 FM, where real voices meet raw stories. And we have a voice with us जो सिर्फ और सिर्फ एक सिंगर नहीं, एक ब्लॉगर हैं और एक एजुकेटर हैं. करना वैली कुपवारा से बिलोंग करते हैं. And let's meet the vibe himself, the Sukhbir Singh. Hi, Sukhbir. Hi. Welcome to Radio Tunar 90.4 Yeah. FM. Thank So, you. how are you feeling? What is the feeling exactly? Yeah. First of all, I'm profoundly gracious by your invitation. Mhm. First of all, to partake in this dialogic exchange, and my sincerest attribute to you. First of all, Thank you. and yeah, it will be a sweaty time for both of us. Yeah, it will be. Of course, it will be. So, अभी जैसे we all know, I know, you know that you're a public figure. आप एक singer हैं, आप एक blogger हैं, तो all the time you're with the camera, lights and everything. So, आपका on ground जो personality है, extroverted है काफी, तो behind the scene, who is Sukhbir Singh, you know? Actually, to be honest, मुझे कैमरा के सामने बहुत एक्सट्रोवर्ट रहना पड़ता है. हाँ. बट अगर कैमरा को छोड़ दें हम घर में ऐसे, तो मैं एक बहुत ही इंट्रोवर्ट पर्सन हूँ. मैं बातें बहुत कम करता हूँ ऐसे. जी. बट या अभी अगर मेरे जो बिहेवियर जिस मेरा मैच हो जाए, अगर वाइब मैच हो जाए किसी के साथ भी, तो या मैं बहुत इजीली कंफर्टेबल हो जाता हूँ. बट इन जी. जनरल अगर मेरी पर्सनैलिटी के बारे में देखा जाए, सो आई एम तो मैं अभी मान लूं कि आप अभी कंफर्टेबल हैं और आपकी वाइब मैच हो रही है, तो इसी वाइब में मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि कब लगा आपको कि आपको सिंगर बनना चाहिए? देखिए, सिंगर बनना या व्लॉगर बनना कन्वेंशनल करियर्स में नहीं आता. इट्स अ नॉन कन्वेंशनल थिंग. आप नॉर्मल भेड़ चाल से हटकर चल रहे हैं. तो ऐसा कौन सा मोमेंट था? बचपन से ही था या फिर आपको समझ आया धीरे धीरे एक्सप्लोरेशन के बाद? Yeah, to be honest, it was 2020 when I was on existential crisis. ओके. So what happened? So I was gobbled and I was contemplating very badly. And that was a sulk for me. So what happened? Actually, I'm interested in singing from my childhood. I used to listen to Nusrat Fateh Ali Khan sir and more interest in Sufism. So what has happened? So my thoughts were gallivanting in my brain actually. Okay. So even I was getting the jitters as well. But to be honest, I was pretending to be a prestigious personality. Like you Means I wanted was to be acting, yeah. something, like you wanted to be out of the box. You Yeah. wanted to be somebody who is known Yeah. and like seen and heard, you know? Yeah, what has happened after that? I called the shots and I released one cover song, which was Azdin Chadya. So what happened? Everyone was throwing a shade in my comment section. I thought maybe I've done something nefarious in my song. Why everyone is giving me a hate? So then after that, I realized, and it was a moment of exorbitantly and flabbergasted, to be honest. So what has happened? I realized that when you're growing, haters will be there with you. Yeah, haters will be there. Haters तो हर जगह होते ही हैं. When they see you growing, they feel like कि हमारे पास नहीं है तो we will bring him or her down. तो उनको उससे अच्छा लगता है कि चलो ठीक है. And like how many projects you have done already और पहला प्रोजेक्ट आपका कौन सा था? पहला प्रोजेक्ट मेरा एक्चुअली आपने सुना होगा, पहले जब मैं सिंगर बनना चाहता था, मैंने क्या किया, स्टार मेकर करके एक ऐप होता था. तो मैं ऐसे फन में मैंने वो गाना बना दिया था. उस पे भी वो कमेंट्स होते हैं. अब चाइल्डहुड में होता है, इंसान तो प्रोफेशनली काम होता है. आई वाज इन 10th क्लास आई थिंक. सो मैंने मजाक में बना लिया, तो मजाक में मेरा मजाक बन गया था. अच्छा, ठीक है. जी. तो उसके बाद इवन दे वांटेड टू एक्सेसरेट मी एक्चुअली. तो उसके बाद क्या हुआ, मैंने यही सोचा कि हाँ, हमें हेटर्स को क्या करना चाहिए, इग्नोर, क्योंकि इग्नोर करना चाहिए. अपना काम करते हैं, हमें क्या? जी, आई डोंट रेस्ट ऑन माय लॉरल्स एक्चुअली. सक्सेस इज समथिंग which you cannot grab it completely. आप उसको एकदम से पकड़ नहीं सकते. अगर आप मिलियनर बनेंगे, आपका सपना रहेगा बिलियनर बनने का, तो उसके बाद वो भी बन जाएंगे आप, और You have more, you want more, जैसी चीज हो जाती है. इट विल डिमांड यू मोर एंड मोर. तो उसके बाद क्या हुआ कि मैं भद्रवा चला गया. मेरे पापा की पोस्टिंग हो गई थी भद्रवा. तो काफी अच्छे फ्रेंड्स थे मेरे वहाँ पे, जो कि बहुत अच्छे सिंगर्स थे. मैं उनके सामने कुछ भी नहीं हूँ. बहुत अच्छा क्लासिकल वो सिंग करते थे. एंड उनके साथ मिला तो माई देयर वाज अ फ्रेंड, तो उसने मेरा सॉन्ग शूट किया था, आज दिन चढ़िया, जिसके बारे में बात कर रहा था. इसके बारे में मुझे बहुत कुछ कमेंट सेक्शन में मिला. पर आप आज ये गाना तो जरूर गाएंगे. हाँ जी, ये गाना तो गाना चाहिए.
क्योंकि आपकी जर्नी इसी गाने से स्टार्ट हुई है, तो इट विल बी रियली नाइस कि इफ यू सिंग सम ऑफ द वर्सेस। हाँ, मैं थोड़ा-सा गाऊँगा, जी। वो जो कि मेरा फर्स्ट सॉन्ग ही था ये, जो कि राहत फ़तेह अली खान साहब ने गाया हम्म। ओरिजिनली। सो ये कुछ ऐसा था, माँगा जो मेरा है जाता क्या तेरा है मैंने, कौन सी तुझसे जन्नत माँग ली, कैसा खुदा है तू बस नाम का है तू रब्बा, जो तेरी इतनी सी भी ना चली, चाहिए जो मुझे कर दे तू मुझको अता, वो जो मुझे देख कर हंसे, पाना चाहूँ रात दिन जिसे, रबा मेरे नाम कर उसे, तेनों दिल दा वास्ता, आज दिन चढ़या, आज दिन चढ़या तेरे रंग वर्गा। थैंक यू। Thank you so much. That was fabulous. That was amazing. And the fact कि ये आपकी raw voice है, कोई भी ट्यूनिंग नहीं है, कोई भी ऐसा एक्स्ट्रा जो काम होता है वॉइसेस पे ताकि वो निखर के आए। आपकी आवाज ऑलरेडी काफी निखरी हुई है माशाल्लाह। एंड थैंक आई यू। वुड लाइक टू आस्क यू कि आपने कहाँ से सीखा है? हु इज योर मेंटर? लाइक हु इज योर इंस्पिरेशन इस चीज में? जी, इस चीज़ में क्या था कि व्हेन आई वाज़ इन माय चाइल्डहुड, तो हमारे घर में एक्चुअली हारमोनियम भी था। हम्म। तो मैं कभी-कभी प्ले भी किया करता था। मैं नुसरत फ़तेह अली खान जी को बहुत सुनता हूँ, बहुत ज़्यादा इवन। तो मैं उनको सुनता था, मैं प्रैक्टिस करता था, कुछ ऐसे सुनते-सुनते आया। मेरे कोई ऐसे पर्सनल कुछ मेंटर या टीचर नहीं थे। उनको ही मैं मेंटर मानता हूँ, जिनकी आवाज़ सुन के मैं आज बिल्कुल, ये आपने आया हूँ। उनकी आवाज सुनी है, कुछ चीजें अडॉप्ट की हैं, कुछ चीजें अपना मिक्स किया है, जी। पर आपने सीखा सही, उनसे। वही मेरे मेंटर हैं। तो बिल्कुल। क्योंकि जब से सबसे ज़्यादा उनको ही सुनता था, तो और उनके अलावा कुछ थे सिंगर्स, जैसे उनके ही जो आगे स्टूडेंट थे, राहत फ़तेह अली खान जी, सतिंदर सरताज, और भी हैं कुछ, मैं नाम अभी मुझे मतलब हाँ, हाँ। ज़हन में नहीं आ रहे ना, बिल्कुल। बहुत सारे हैं, तो मैं सुनता था, बट सबसे ज़्यादा उनको ही मैंने सुना है अभी तक। जी, तो आप सिंगिंग के अलावा आप व्लॉगिंग भी करते हैं जी। एंड दैट्स एक्चुअली बहुत ट्रेंडिंग भी है। तो आपने एज़ अ ट्रेंड स्टार्ट किया था कि या आपको लगा कि इसमें भी आपका कुछ पोटेंशियल है? एक्चुअली देखिए, अगर आप एक आर्टिस्ट हैं, आप हुँ, एक हुँ। सिंगर हैं, तो मेरे आपके सॉन्ग्स आते हैं, हुँ, हुँ। आपके फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा सॉन्ग कल आ रहा है या परसों आ रहा है, जी। सपोज़ करें आप। तो अब मुझे उसकी एक तो होता है प्रमोशन करना, किसी दूसरे, अब मेर अपनी स्टोरी डालूँगा, उतना अप्रोच नहीं आया कभी। जी। इवन आपको पता होगा सोशल मीडिया का हाँ, एल्गोरिथम क्या चलता बिल्कुल। है। तो मैंने सोचा कि एक व्लॉगिंग चैनल भी होना चाहिए, जिसपे मैं थोड़ा-सा फैन बेस हो जाए उसपे, जब मेरा सॉन्ग आए तो मैं अनाउंसमेंट कर दूँ। बिल्कुल। और भी काफ़ी अच्छी जगह थी, पहले से ही मैं कुछ अच्छी-अच्छी जगह पे जाता था और मैं वहाँ पे एक्सप्लोर नहीं कर कर पाता था। तो पिक्स 1-2 ले लेता हूँ, चलो मेमोरीज़ बनी रहेंगी। हाँ, बट हाँ। ऐसा भी मन करता है कि इस चीज़ की वीडियो बनाएँ, खुद को लाएँ उसमें और हुँ, इस चीज़ हुँ। को एक्सप्लोर किया जाए, इस चीज़ की एक सही से ब्यूटी को। एक्सप्लोरेशन हो और अगर मैं देख रहा हूँ, तो वो लोग भी देखें जो मुझे देख रहे हैं। जी, जी, बिल्कुल। बिल्कुल। तो हमें देख वही मेरा कांसेप्ट था कि कभी हम होली प्लेसेस में जाते हुँ, हैं, हुँ। जैसे हम गए थे, जैसे आप गोल्डन टेम्पल चले जाएँ, हुँ, हुँ। हम ज़ियारत पे भी गए थे उधर अमृतसर पंजाब में, जी, बाबा बुड्ढन शाह जी की ज़ियारत है, जी। उनका जी, उनका ज़िक्र जो हमारे रिलिजन में भी किया गया है। तो ऐसी-ऐसी जो होली प्लेसेस हैं या कुछ आपको टूरिस्ट प्लेसेस हैं, उन उन चीज़ों को अगर आपको एक्सप्लोर करना है, तो आपको व्लॉगिंग तो करनी हाँ। पड़ेगी। तो इसलिए मैंने स्टार्ट किया था व्लॉगिंग। तो आपका जो क्रिएटिव प्रोसेस रहता है व्लॉगिंग करने का, तो आप वो स्पॉन्टेनियसली किसी भी जगह पे कर लेते हैं कि हाँ, आज मैं एक बहुत अच्छी जगह पे हूँ तो लेट्स व्लॉग, और यू प्लान इट अकॉर्डिंगली कि हाँ, अब मैं इस जगह जाऊँगा क्योंकि मुझे व्लॉगिंग करनी है? देखिए, ऐसा रहता है कि मेरे 2 टाइप्स की ब्लॉगिंग होती है। हुँ, हुँ। फर्स्ट टाइप होता है कि जब मेरा सॉन्ग शूट होता है खुद का, हुँ, हुँ। तो मैं बिहाइंड द सीन्स, बिहाइंड द सीन्स एग्ज़ैक्टली। आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग पे भी जा ट्रेंडिंग रहा है। एंड इट्स फन जी, एक्चुअली। या इट्स अ फन एक्चुअली। तो उसमें क्या होता है कि आप कैसे एक्ट करते हैं, तो आपने क्या-क्या गलतियाँ की, क्या-क्या सीखे, सर आपको बिहाइंड द सीन्स में ही आपको मिल जाता मिल है। जाता है बाद में। तो आपने क्या गलती की, आप सेकंड टाइम वो गलती ना करें। हाँ, हाँ। फर्स्ट तो हो गया ये। सेकंड टाइम आप, अगर हम वही जो मैंने बोला टूरिस्ट प्लेस पे जा रहे हैं, किसी हुँ, हुँ। होली प्लेस में जा रहे हैं, आपको एक्सप्लोर करना है, आपको नई चीज़ देखनी है, आपने कुछ देखा नहीं होता है हाँ, जैसे। हाँ। तो एक्चुअली मैं इसी बार फर्स्ट टाइम मैंने जो शिकारा राइड थी इस बार की, तो मेरा एक्सपीरियंस थोड़ा अलग था उसपे। पहली बार आप पहली शिकारा बार राइड करने गए थे। एज़ तो अ कैसा लगा कश्मीरी। आपको? ये सब साइड में पहले आप बताइए आपको कैसा लगा शिकारा राइड पे? क्योंकि मैं बहुत डरती हूँ पानी से और मुझे बहुत डर लगता है। आप बताइए आपका कैसा एक्सपीरियंस था? टू बी ऑनेस्ट, मुझे भी पानी का फ़ोबिया है, अच्छा जी। हाइड्रोफोबिक हूँ मैं भी। तो मैं जब
शिकारा के ऊपर चढ़ा तो वो पीछे हुई, मुझे लगता हम गए, मतलब उसका पता नहीं रहता ना, अगर थोड़ी हवा, अभी पिछले दिनों उसका एक केस भी हुआ था कि वो शिकारा पलट गया था, हाँ, हाँ। मुझे वो चीज़ दिमाग में रहती है, तो मैं हाँ, ऐसी चीज़ों से दूर ही रहता है। तो जी, आज जी। इस बार मैंने सोचा चलो, मैं एक्चुअली डर का मिलने गया सामना था। करते हैं। जी, 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 डर का सामना करते थे, और मैं गया था वहाँ पे कैवा भी थी मैं, जो कि काफ़ी फेमस अच्छा फेमस कहवा काला है। है वहाँ पे। तो मैं भी चला गया ऐसे, तो अच्छा था, बाकी डर थोड़ा चढ़ने स्टार्टिंग में लगा था, बाद में नॉर्मल हो गया था। हुँ, हुँ। जी, तो अगर आपको एक दिस इज़ लाइक अ रैपिड क्वेश्चन टू यू, जी। बहुत रैंडम क्वेश्चन कि अगर फॉर अ मंथ आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ या व्लॉगिंग करनी है या सिंगिंग करनी है, तो व्हाट वुड यू चूज़? आप सिर्फ़ एक चीज़ कर क्वेश्चन, सकते हैं। जी, क्वेश्चन तो आपने थोड़ा कॉम्प्लिकेट पूछ लिया, बट या मैं सिंगिंग की तरफ जाऊँगा, ठीक क्योंकि है। वो एक तरह का आर्ट है, व्लॉगिंग तो फिर भी चलते-फिरते हो जाती है। हुँ, हुँ। व्लॉगिंग का भी आर्ट है, बट जो सिंगिंग है वो एक आपको हुँ, हुँ। सोलफुल प्योर आर्ट माना जाता है, जो बिल्कुल, कि आजकल बहुत ही आपको सूफीज़्म में दिखेगा, कुछ भी म्यूज़िक एक तरह का एक, मतलब बहुत अच्छा आर्ट है, जो कि हर कोई नहीं कर पाता। बिल्कुल। हर एक को ये टैलेंट भी नहीं होता हुँ, है। हुँ। तो इसलिए मैं सिंगिंग को ही चूज़ करना चूज़ चाहूँगा। करेंगे जी, सिंगिंग को ही। तो जैसा कि आप करना वैली एक बहुत ही खूबसूरत जगह है, वो अनएक्सप्लोर्ड है, अनटच्ड ब्यूटी है, जी, बट वो जगह से आप आते हैं, आपने इतना एक्सप्लोर किया है, यू हैव बीन अ लॉट ऑफ प्लेसेस इंडिया में, हर जगह, हमारी कंट्री में आप हर जगह गए हैं। तो आपका कुछ ऐसा एक्सपीरियंस है कि ऐसा कुछ डिफरेंट जहाँ से आपको लगता है कि हाँ, मैं कश्मीर से हूँ, आपके आर्ट में वो कहीं झलकता है? एक्चुअली मैं आपको एक स्टोरी, अपनी स्टोरी है। आई वाज़ इन बैंगलोर, हुँ, हुँ। मेरे कुछ आई हैड सम शूट्स एंड कंसर्ट्स ओवर देयर। हम कश्मीरी अब पहचान जाते हैं, लाइक अगर आप स्किन फेयर टोन की बात करें, हाँ, फेयर हाँ। टोन की बात करें, या कुछ भी आप पहचाने जाते हैं, कश्मीरी एक बिल्कुल, दूसरे को बिल्कुल। पहचान लेते हैं। तो मैं एक चर्च स्ट्रीट करके जगह है वहाँ पे, तो 2 कश्मीरी थे वहाँ पे, तो वो थे अनंतनाग से। पहचान लिया उन्होंने मुझे, कहाँ से हो? मैंने बोला मैं, हाँ, मैं भी कश्मीर से हूँ, तो मैं करना से हूँ। हुँ, हुँ। अब मेरे साथ वो कश्मीरी करने लगे, काशिफ़ चुप, ऐसा उन्होंने बोला कुछ। हाँ, मुझे बड़ा एम्बैरेस फ़ील हुआ कि मुझे कश्मीरी नहीं आती थी, अब मैं इनसे कैसे बात करूँ? हाँ, हाँ। उस चीज़ के मतलब एक होता है कि आपको एज़ अ कश्मीरी आप क्या करते हैं बाहर जाके, आप कश्मीरी लगें। हाँ। तो वही चीज़ मैं नहीं कर पाया अभी तक। तो अब मैं आपको सीख रहा हूँ थोड़ा-थोड़ा कश्मीरी। सीखना चाहते हैं, कश्मीरी सीखना चाहते हैं क्योंकि कश्मीरी, ऑब्वियसली अपनी लैंग्वेज देयर इज़ एन अ सेंस एक कश्मीरियत होती है। आप वो कश्मीरी। झलकाना चाहते हैं हर जगह, आप वो उभारना चाहते हैं, वो आइडेंटिटी एज़ अ कश्मीरी जी, वो एंड तो दैट्स वेरी ब्यूटीफुल, दैट्स मेरा रियली एक ब्यूटीफुल। फ़ेवरेट सॉन्ग भी था एक्चुअली, मैं कश्मीरी, एंड डोंट जज मी ऑन माय कश्मीरी नहीं, नहीं, एक्सेंट बाय द वे, इट्स ओके। एंड प्रोनाउंसिएशन भी कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं है, बट अब मैं जितना ट्राई करता था उस चीज़ को, यावर अब्दुल साहब है, उनका एक हाँ, गाना था दिलशाद करके, दिलशाद उनका काफ़ी खूबसूरत तो गाना है वो। जी, जी, वो मैं थोड़ा गाना चाहूँगा। श्योर। तो प्लीज़ थोड़ा-सा मतलब उसमें आप जो होता है नहीं ना, कोई बात नहीं, वी डोंट डोंट जज मी ऑन जज, माय वी लिसन, कश्मीरी एक्सेंट। वी लिसन, वी डू नॉट जज। जी, तो ऐसा था वो। हरद वावं कुरनस्तबा यिकरा बहारो सलियें तमा, यिकरा बहारो सलियें तमा, युस पर शहरियत गसहा करे, दूर ये चोन बमाजरे, माजरे, माजरे, गसहा गरे, गसहा गरे, बागे दिल सफाज में लोलच फुलई। थैंक यू। दैट वाज़ नाइस, दैट वाज़ अमेजिंग। भले ही आपको कश्मीरी उतने अच्छे से नहीं आती बट कहीं न कहीं वो इमोशंस झलक ही जाते हैं। म्यूज़िक एक ऐसी ही चीज़ है जहाँ पे हम कितना कहते हैं ना वो इमोशंस, वो फीलिंग्स लाख छुपाए वो दिख जाता है। जी। अब देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल वाचिंग यू एंड ड्रीमिंग व्हाट यू डू। सो एग्ज़ैक्टली मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी एक ऑनेस्ट पीस पीस ऑफ एडवाइस आपके पूरे एक्सपीरियंस से जितना आपने एक्सपीरियंस किया है एज़ अ सिंगर, एज़ अ व्लॉगर एंड ऑफ कोर्स एज अ एजुकेटर उसके बारे में भी बात करूंगी मैं, बट पहले आप एक एडवाइस दे दीजिए सबके लिए जो आपको देख रहे हैं। तो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल इस करियर, जो सिंगिंग करियर है, उसके बारे में एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा। यू हैव टू चूज़ इट वेरी वाइज़ली, हम्म, because you cannot force, I cannot force someone to listen to my songs, right? बिल्कुल। If someone is swanning my voice, he or she will definitely listen to it. वो अलग बात है कि आप अगर करिस्मेटिक, इफ यू आर हाँ। करिस्मेटिक, तो एवरीवन विल लिसन टू यू, बट मैं सजेस्ट आपको तभी करूँगा कि आपके पास अगर कोई आपका कोई रिलेटिव, आपका कोई फ्रेंड इस पहले इस बैकग्राउंड में है सिंगिंग वाले में, तभी आए, क्योंकि बहुत सारे आप सिंगर्स देख सकते हैं जो जिनके पास बहुत टैलेंट भी है,
लेकिन उनको व्यूज नहीं आते, उनका लाइक शोज कम होते हैं। हम्म। आज चलते हैं कि आपके पास कितना फैन बेस है, टैलेंट तो है, आप सिंगिंग करते हैं, आप जरूरी सिंगिंग है कि करते हैं, टैलेंट हो, स्किल टैलेंट होना से चाहिए। स्किल है आपके पास, बट कुछ लोग वहां से छोड़ देते हैं कि उनको कुछ प्रोग्रेस नहीं मिलता है इस चीज हम्म। के बारे में। तो पहले एक आप अच्छा फैन बेस बनाएं, फिर आप सिंगिंग ज्वाइन कर सकते हैं। मतलब इस चीज में बहुत आपको बेनिफिट है और बहुत अच्छी अच्छी चीजें आप सीख सकते हैं सिंगिंग में। इसमें कुछ लाइंस भी थी कि लाइक फेम इज फिकल, राइट? हम्म। Fame is a fickle thing, but your song will outlive time if it is born from truth. हाँ हाँ, इफ लाइक आर्टिस्ट इज बीइंग एंड इज हेल्ड ऑन ट्रूथ, Yeah, वो हर दिल को छू जाता है, क्योंकि चाहे वो कैमरा हो, माइक हो, इट सीज द रियल यू, व्हाट यू एक्चुअली आर, जो आप पोर्ट्रे कर रहे हैं आगे। सो एक्चुअली बीइंग एन आर्टिस्ट इज रियली ब्यूटीफुल एंड इट टेक्स अ लॉट, एक्चुअली इट टेक्स अ लॉट। एंड मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि जैसा कि मैंने पहले कहा कि आप एक मल्टीटास्कर हैं, आप एक कहते हैं ना वो ऑलराउंडर हैं, एजुकेटर भी हैं और व्लॉगिंग भी करते हैं, सिंगर भी हैं। अब हमने सब एक्सप्लोर कर लिया, अब सिर्फ एजुकेटर बचा है। प्लीज tell the audience like what you teach people and what you actually believe as an educator. एजुकेटर आप कुछ भी कह लें, आप कुछ भी देखते हैं, कुछ भी ऑब्जर्व करते हैं। आज क्या हुआ मेरे साथ, मैं सोपर में आया, तो अभी हमारे थोड़ा टाइम लेट हमें पॉडकास्ट स्टार्ट करा, मैं जल्दी पहुंचाया था। तो मैं एक रेस्टोरेंट में बैठा था, छोटा रेस्टोरेंट था इधर ही सोपर में ही। तो आई वाज हैविंग अ जूस, तो कुछ वहाँ पे 2-3 बंदे आए एंड एक ने मुझे पूछा कि आप कब यहाँ से जाएंगे। जी। तो मैंने बोला हाँ, मुझे 10-15 मिनट लग जाएंगे, आई विल लीव आफ्टर 10 or 15 मिनट्स। ही टोल्ड मी कि आप जब जाएंगे तो उसके बाद ही मैं स्मोक करूंगा। अच्छा। तो वो चीज़ मुझे, उसके बाद एक और बंदा है, उसके हाथ में सिगरेट थी एंड And he was smoking yeah, वहीं पे। he was smoking and owner told him no, you can't smoke here, it's a kind of disrespect and ये गुनाह भी है, क्योंकि वो सिख भाई जो हमारे हैं, वो ये नहीं करता। जी। तो मुझे काफी अच्छा लगा, इवन काफी ज्यादा सिमिलैरिटीज भी है हमारा हाँ, हाँ। विजन में। एंड आप भी, यू ऑल्सो अबे वन ओमनी प्रेजेंट गॉड, खुदा अल्लाह वाहिगुरु एक ही जी है जी वो। जी। तो मुझे काफी रिस्पेक्टफुल लगा वो जेस्चर जो था उनका, काफी रिस्पेक्टफुल। हम भी रिस्पेक्ट करते हैं जो लाइक कोई रिलीजन, कोई मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। जी जी, कोई वैसा जी, सिखाता नहीं है। तो यू बिलीव इन एजुकेटिंग एंड लाइक हर चीज के बारे में जी, ऐसा जो ऑब्जर्वेंट है जी, हर चीज को लेके, एंड जी, दैट्स रियली रियली नाइस। एंड नॉट लीस्ट, आई वुड लाइक टू आस्क यू अगेन अबाउट योर फ्यूचर प्रोजेक्ट्स। कुछ ऐसा अपकमिंग है, कुछ ऐसा एक्साइटिंग जो आपके लिए है, आपको लाइंड अप है आपके लिए? एक्चुअली मैं 2-3 प्रोजेक्ट्स में काम कर रहा हूँ अभी, जो कि अभी 20 डेज के अंदर आपको यू विल सी समथिंग स्पेशल। ओके, दैट्स अ एंड सरप्राइज, दैट्स अ या सरप्राइज। इट्स अ सरप्राइज बेसिकली। वो देखते हैं हाउ इट गोज। एंड मैं, मुझे फैमिली की तरफ से भी अच्छा सपोर्ट मिल रहा है। If I talk about my family, I have got one of the best parents. ओके। They always support me. They know I have a good head on my shoulder. And उसके बाद ये है कि especially if I talk about my father, he is conscientious. He is epitome of being a best father. क्योंकि ऐसी कोई भी जगह नहीं है जहाँ पे मुझे पापा लेके नहीं गए, एंड ऐसी कोई भी चीज़ नहीं जो मेरे पास नहीं है। ही सपोर्ट्स मी इन एवरी वे, एवरीवेयर एंड एवरी वे। एवरीथिंग। और मैं डिस्ट्रैक्शंस में पड़ता नहीं हूँ। डिस्ट्रैक्शंस में इसलिए नहीं पड़ता कि मेरा एक्चुअली एक शेर अर्ज किया है कुछ मैंने, मत कर तमन्ना किसी को पाने की, बड़ी बेदर्द है निगाहें ज़माने की, तू खुद को बना काबिल इस कदर कि तमन्ना करें लोग तुझे पाने की। Oh, that's really nice. Thank you so much, Sukhbir. It जी, was really nice talking to या you. सेम, And या thank you so much. And this is RJ Astra signing with a loud message. Be loud, be curious, be original. And if you're vibing, do not forget to record it. Catch you next time.